ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? मैंने स्क्रीन शेयर किया है, ये ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वही, वी हैड टॉक्ड अबाउट फंक्शंस। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग फंक्शंस इन टुडेस क्लास, ठीक है। टुमारो आई विल टेक अप पॉइंटर्स। So you already know that if a C program has got only one function, it has to be main function. And a program can contain any number of functions, right? But execution will always start from the main function because your main is the entry point. So have a look at the screen. Let's suppose I write this. I write a simple C code. Okay, so I do. Void, let's go animal function h, and it expects so let's run this. Fine. So can you see the output? इसने output क्या दिया इस program ने? It gave the output ABC. सब लोग देख रहे हो? You people are with me only. So if you look at this program, I had taken two functions. One is a function that I defined, fine, by the name h. Another is the important function, one and only function that has to be there, that is this. That is this main function. So first I wrote down this function, that is void h, and inside the body of this function there is one statement printf abc. उसके बाद मैंने main लिखा, लेकिन you already know execution always starts from main. You have to look for main, remember, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे आओगे पहले main के अंदर गए, इसमें खाली एक ही चीज है, that is this statement which is a function call, ठीक है ना? तो कंट्रोल यहाँ से सीधे चला गया कहाँ? h में, और h के अंदर इसने प्रिंट कर दिया abc. फिर कंट्रोल आएगा वापस जहां से h को बुलाया गया था, that is from this point, और उसके बाद ये आगे चलेगा, there is nothing, program will terminate. Fine, is it clear? So let's suppose if I do something like this, suppose I write Dennis Ritchie. Can you tell me now what will be the output of this code? Quickly बताओ जल्दी, इसका आउटपुट क्या होगा? बोलो, हाँ बताओ quick. What will be the output of this C code? You people are with me. मेरे अब सब हो ना कि नहीं? Connection is lost. Yes, sir. So what will be the output of this code? Can you tell me? See, execution starts from main, ये वाला, तो आपको मेन के अंदर के, बट देयर इज अ फंक्शन कॉल ऑफ h, कंट्रोल सीधे चला गया कहाँ? यहाँ पे, ठीक है ना? दिस मेन इज स्टिल पेंडिंग. इस मेन के अंदर दो स्टेटमेंट्स थी, एक तो h और ये printf, लेकिन अभी पेंडिंग है. दिस मेन, इट विल बी पुश्ड ऑन टू अ स्पेशल एरिया ऑफ रैम दैट वी कॉल अ स्टैक. वो आप छोड़ दो, दैट्स आउटसाइड दिस कोड, लेकिन दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल सीधे यहाँ चला जाएगा h पे, ठीक है ना? तो इसके अंदर पहले प्रिंट कर देगा abc. नाउ h इज डन, h तो खत्म हो गया ना, h के अंदर खाली था printf abc, ओनली वन स्टेटमेंट इनसाइड h फंक्शन. उसके बाद कंट्रोल कहाँ वापस जाएगा? इट गो बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर h वाज कॉल्ड फ्रॉम मेन. तो कंट्रोल वापस यहाँ आएगा, इस जगह वापस, ठीक है? abc प्रिंट करने के बाद उसके बाद आगे चलेगा, उसके बाद क्या है? printf \n will take cursor to the next line and it will print Dennis Ritchie. So the output of this program will be abc on one line, and on next line you will get Dennis Ritchie. ठीक है? So if I run this code, you will get output like this. सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है? This is really important. Please try to understand what इसको है ना, ये चीज जो ये वाली चीज है, इसको हम कहते हैं function definition. This whole, this I might put it like this. ये है ना, ये इसको हम कहते हैं function definition, ठीक है ना? From this point up to, ठीक है, from this point up to this point, ठीक है ना?
ये इस पार्ट को वी कॉल दिस एज फंक्शन डेफिनेशन, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है ना। अब देखो इस void h का मैंने टाइप क्या रखा, रिटर्न है void, दैट मींस इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। हाँ वो तो इट सिंपली प्रिंट्स एबीसी। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे int लिखूंगा, दैट मींस इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। कहो किसको रिटर्न करेगा, फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड, दैट मींस दिस पॉइंट, यहाँ पे जाकर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है ना। सो दिस प्रोग्राम, आई होप दिस इज क्लियर टू everyone. See, now I will slightly change this. Let's suppose I do something like this. ये ध्यान से आप देखना what I mean by this. I take int x equal to, let's suppose 34, ठीक है। Can you tell me what will be the output of this code? I देखो main function के अंदर I took an integer variable by the name x and assigned it the value 34. उसके बाद I am calling the function h. और h के अंदर there is only one statement, that is printf %d comma x. What do you expect this code to do quickly? Will it give an error or will it print 34 and then Dennis Ritchie? क्या आपको लगता है? What will this do? What do you expect this code? Will it give an error or it will print some value? बताओ quick. What will be the output of this C program? हाँ बोलो क्विकली। अरे बोलो, कुछ भी रैंडमली बोल दो, इट्स जरूरी नहीं कि आप सब हमेशा ठीक ही बोलो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस कोड टू डू? हाँ, आरिफ, बशारत बेग, गजाला, इशफा मीर, रिहाब, उबैद, पीरजादा, जुबैर, यू आर विद मी, सब हो ना मेरे साथ? हाँ बोलो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस कोड टू डू? क्या करेगा ये कोड? It will give an error if you run this code. Let's run it. ठीक है ना? So it gave an error. हेलो हेलो, हाँ बोलो। कैन यू हियर? सो व्हाट दिस, ये प्रोग्राम एरर देगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। आपको लगेगा सर ये तो x का वैल्यू 34 प्रिंट करना चाहिए, फिर डेनिस रिची, नो इट वोंट हैपन। अगर हम नीचे देख भी सकते हैं, इट्स गिवन एरर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस प्रोग्राम इज गिविंग एन एरर। मैंने इंटीजर वेरिएबल एक x लिया इक्वल टू 34, बट इनसाइड मेन फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर। अब सिंपल पॉइंट आपको क्या रखना है कि जो भी फंक्शन है, इन दिस केस इट्स मेन, ठीक है ना, वी हैव डिक्लेयर्ड एन इंटीजर वेरिएबल इनसाइड मेन। इसका हम वी कॉल इट एज स्कोप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड एज स्कोप, ठीक है ना। इट हैज गॉट लोकल स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है कि दिस वेरिएबल जो है ना, ये x कंटेनिंग वैल्यू 34, इसका स्कोप, मतलब स्कोप का मतलब होता है कि इट कैन बी ओनली एक्सेस फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू द एंड ऑफ मेन फंक्शन, जो यहाँ तक है, ठीक है ना। द मोमेंट यू मूव आउटसाइड मेन, ठीक है ना, जब आप मेन के बाहर चले गए, दिस इंटीजर वेरिएबल x इट गोज आउट ऑफ स्कोप, ठीक है ना। मतलब कि ये रैम में अपनी 4 बाइट्स तो लेगा, लेकिन द मोमेंट यू मूव आउटसाइड द मेन, ठीक है ना, you cannot access this variable x, ठीक है, because this variable x is local to the main function, because it has been declared in which function main, ठीक है, and this is true for any other function, ठीक है ना। इसका स्कोप है लोकल टू द फंक्शन, ठीक है। मतलब आई एम रिपीटिंग, इट विल टेक इट्स 4 बाइट्स इन रैम, 4 बाइट अपने लेगा, लेकिन जैसे ही आप मेन के बाहर निकले, ये वहीं पे है x, इसकी वैल्यू 34 भी वहीं पे जो दी है हमने, लेकिन यू कैन नॉट एक्सेस इट आउटसाइड द मेन, ठीक है ना। ठीक है, इसका एक्सेस, आई मीन इसका स्कोप है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन टिल द एंड ऑफ द फंक्शन, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है ना। इसी दरमियान आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब हम h फंक्शन हमने कॉल किया, हम किस में चले गए, h फंक्शन में। सो दिस लोकल वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, यू कैन नॉट एक्सेस इट ऑल्दो इट इज देयर, ठीक है ना। अब इससे ये 4 बाइट्स कब छीने जाएंगे, आई मीन जिसको हम टेक्निकल टर्म्स कहते हैं डी एलोकेशन कब होगी, मतलब दैट मेमोरी विल बी डी एलोकेटेड, दीज 4 बाइट्स विल बी
डीएलोकेटेड। वो तभी होगा कि जब मेन फंक्शन खत्म होगा, दैट मींस व्हेन द मेन फंक्शन रिटर्न्स। ठीक है, द मोमेंट मेन फंक्शन रिटर्न्स, all the variables that have been declared, be it integer, float, whatever, char, जो भी हो, then the memory deallocation will take place, मतलब memory उनसे छीन ली जाएगी। ठीक है ना, ये थोड़ा important point है, just try to understand what I'm trying to say। इसने error क्यों दिया? Because you declared an integer variable in main, the scope of this integer variable is local to the function main, that is from the point of declaration जो ये वाला up to the end, यहाँ तक, इसके बाहर इसकी कोई existence ही नहीं है। तो जब आपने int x में लिया 34 चला गया, फाइन, इससे 4 बाइट्स थे, फाइन। उसके बाद क्या है? फंक्शन कॉल ऑफ h, ठीक है ना, तो कंट्रोल चला गया किधर? मेन के बाहर, कहां चला गया? h में। इज इट क्लियर? उसके बाद आप h में क्या करो? प्रिंट एफ % द x, उसको पता ही नहीं है x क्या है, बिकॉज फॉर h फंक्शन x डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज दैट x इज लोकल टू विच फंक्शन? इट्स लोकल टू द मेन। इसीलिए इसने एरर दिया, इसीलिए इसने क्या दिया? एरर। ठीक है, so now let's try to rectify this program, and I might do int x equal to 887। अब मुझे जल्दी बोलो, without wasting time, what do you expect this program to do now? Quick, will it give an error or it will run perfectly, and what will be the values if it runs perfectly? Quick, बताओ जल्दी, बोलो। पहले 887 देगा, फिर जनरल स्विचिंग देगा। हाँ, 88, फिर दूसरे पे क्या देगा? जनरल स्विचिंग। हाँ, absolutely, it will give 887 on the first line, and then second line it will give dense region। लेकिन क्यों? देखो, when the function h was called, control went outside, लेकिन यहाँ पे हमने एक अपना integer variable x किया। देखो, I am writing here, this is different x variable, ठीक है ना, this is a different x variable, ठीक है, local to which function? Local to h function, ठीक है ना। आई एम रिपीटिंग, जो मेन के अंदर x है ना, जिसकी वैल्यू 34 है, उसने अपने 4 बाइट किसी एड्रेस पे लिए, मेक गिव सम एड्रेस 30, 40, 60 एड्रेस, कुछ भी दे दो, उस x के अंदर वैल्यू क्या है? 34। लेकिन जो h में है x, दिस इज सम डिफरेंट x occupying 4 bytes somewhere else in RAM, and its value is 887। ठीक है ना, तो ये प्रिंट कर देगा इसकी वैल्यू, दैट इज 887, फिर कंट्रोल जाएगा वापस मेन में, फिर प्रिंट कर देगा डेनिस रिची। So the output of this code will be 887 on one line and Dennis Ritchie on second line। देखो, मेरा point बिल्कुल बहुत, the point I want to make here is you have got two integer variables, both by the same name, that is x। One is local to main function, another is local to h function। They are two entirely different integer x variables। उस x का कुछ और एड्रेस होगा, इसीलिए जब भी आप कॉपी पे करोगे ना, उस x को साइड पे बनाओ, 34 वैल्यू दे दो, और जो मैं स्टार्ट में आपको दिखा, और नीचे कुछ एड्रेस दे दो, लेट्स सपोज 200, ठीक है ना, जो मैं स्टार्ट में आपको दिखा रहा था, वो डब्बा काइंड ऑफ बकेट, उसके अंदर 34 डालो, x लिखो, नीचे साइड पे एड्रेस दे दो कुछ स्टार्टिंग में 60, 70, व्हाटएवर इज द एड्रेस इन रैम, और जो h का है उसका कुछ और एड्रेस दे दो, लेट्स सपोज 200, 230, व्हाटएवर। बट माय पॉइंट इज दीज टू इंटीजर वेरिएबल x आर डिफरेंट। ये एक ही नहीं है, ये दो है, वो अपनी जगह अलग 4 बाइट्स कहीं रैम में ले रहा है, ये दूसरी जगह ले रहा है, ठीक है। सो इफ यू रन इट, यू विल गेट दिस आउटपुट। लेट्स रन इट। Is it clear to everyone? सबको clear है? अरे student, male students, you are with me or not? Hello? Out of 16 participants, जरा सारे ये बोलो। Yes sir, yes sir। हाँ, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? समझ Yes sir। Yes sir। Is it clear? मैं ये repeat कर रहा हूँ, दोनों integer variables different है, ठीक है ना? इसका स्कोप है ना, ये जो h का, इसका स्कोप है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्रीज टिल द एंड ऑफ h फंक्शन, दैट इज खाली इतना ही है बस, इसके बाहर एक्सेस ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली फॉर दिस। अच्छा, नाउ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे चल के आपको ये जरूरत लगेंगे, व्हेन वी विल डू सम कॉम्प्लेक्स गेट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, तब आपको यही कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। Now let's try to understand this C program again, क्योंकि इसमें मैं कुछ पॉइंट्स रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम जो आपके सामने। फर्स्ट एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन, इंटीजर x इज इक्वल टू 34, साइड में एक डब्बा बनाना, उसके अंदर डालना 34, नीचे लिखना x जो मैंने पहले ही दिखाया, और उसको कुछ एड्रेस दे देना स्टार्टिंग, लेट्स सपोज गिव इट एन एड्रेस 100। उसके बाद फंक्शन h इज बीइंग कॉल्ड, कंट्रोल सीधे जाएगा मेन के बाहर, कहां? h पे। लेकिन अभी मेन खत्म नहीं हुआ, मेन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेन में प्रिंटफ भी था और उसका एनक्लोजिंग ब्रेस भी था, ठीक है ना। सो मेन इज स्टिल देयर, मेन हैज नॉट फिनिश्ड, ठीक है। कंट्रोल विल गो आउटसाइड बिकॉज़ h इज कॉल्ड
एक नया इंटीजर वेरिएबल x बनेगा, उसके अंदर 887 है, उसको कुछ और एड्रेस दे दो, 600 कुछ भी दे दो, वो अपने 4 बाइट्स लेगा, ठीक है ना, गिव इट सम स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद प्रिंटफ होगा 887। जब ये फंक्शन मेन h खत्म हो गया, कंट्रोल कहां जाएगा? टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर h वाज कॉल्ड, दैट इज दिस पॉइंट, यहां पे वापस आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है ना। जैसे ही कंट्रोल ये खत्म हो गया ना, ये h फंक्शन, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, जैसे ही ये फंक्शन h खत्म हो गया, बिकॉज दिस फंक्शन h हैज नाउ फिनिश्ड, फिनिश्ड कैसे हो गया, आगे चला, प्रिंट एफ कर दिया, उसके बाद करली ब्रेस आ गया, यहां से यहां तक है, ठीक है ना। मेमोरी डीएलोकेशन ऑफ दिस वेरिएबल विल टेक प्लेस, इस वेरिएबल ने वैल्यू थी 887, इसने 4 बाइट्स ली थी रैम में, बिकॉज द फंक्शन इन विच इट डिफाइंड इज h, दैट हैज फिनिश्ड, मेमोरी डीएलोकेशन टेक्स प्लेस, इस x से ये 4 बाइट्स छीन लिए जाएंगे, खत्म हो जाएगा, अब इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, ये सारा खत्म हो गया, 4 बाइट्स इससे लिए गए, कंट्रोल आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेगा, प्रिंट एफ कर देगा डेनिस रिची, उसके बाद आगे चल के मेन भी हो गया ना खत्म, जैसे ही मेन खत्म हो गया, ये वाला एक्स भी खत्म हो जाएगा, कंट्रोल सीधे जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, सारा प्रोग्राम रैम में से क्लियर हो जाएगा, आपको आउटपुट आ जाएगा। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, प्लीज आई विल पॉज, लेट मी नो, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला। इफ एनीवन हैज गॉट डाउट प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कंसेप्ट, ये क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर दिमाग में, मेमोरी में हो क्या रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी समझाया, ओके आई विल रिपीट, चलिए ठीक है। देखो आई एम सेइंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन, आपका मेन हो गया, इंट एक्स आ गया इक्वल टू 34, 34 के साइड में एक डब्बा आप बना दोगे, बकेट, उसमें डाल दो 34, नीचे लिख दो x, इट विल टेक 4 बाइट्स इन रैम एट सम एड्रेस, 4 बाइट्स, गिव इट सम स्टार्टिंग एड्रेस, लेट्स सपोज 30, 30, 31, 32, 33, मतलब 4 बाइट्स, 31 बाइट, 31 2 बाइट, 32 3 और 4, बट वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है ना, ये आप कॉपी पे किया करोगे। सो x के एक डब्बा बनाओ, उसमें 34 लिखो, नीचे x लिखो, स्टार्टिंग एड्रेस कुछ 30 60 व्हाटएवर, दैट्स अप टू यू। उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, h इज बीइंग कॉल्ड, कंट्रोल चला गया मेन के बाहर, ठीक है ना, लेकिन मेन खत्म नहीं हुआ, मेन को अभी प्रिंट एफ भी था, मेन यहाँ पे खत्म हो रहा है, मेन ऐसे ही रैम में रहेगा क्योंकि मेन अभी खत्म, ये x भी ऐसे ही है, बट द मोमेंट यू कॉल दिस फंक्शन h, कंट्रोल गोज आउटसाइड, नाउ दिस x इट बिकम्स इनएक्सेसिबल, इट गोज आउट ऑफ स्कोप, ये वहीं पे है इसके 4 बाइट, लेकिन अब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आप कहां पहुंचे, h फंक्शन में, h में एक और इंटीजर वेरिएबल है, इसको भी साइड में डब्बा बनाओ, उसमें 887 लिखो, नीचे x लिखो, मगर कोई डिफरेंट एड्रेस, इट्स अ डिफरेंट x वेरिएबल, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला डिफरेंट है, तो इसमें उसके बाद प्रिंट एफ हो जाएगा 887, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, ये फंक्शन खत्म हो गया, द मोमेंट दिस h फंक्शन finishes, what will happen, memory deallocation will take place, जो भी इसके अंदर लोकल वेरिएबल्स है, और इस इन दिस केस देयर इज ओनली वन, दैट इज दिस x इक्वल 887, खत्म हो जाएगा, इसकी कोई एग्जिस्टेंस है, अब ये पूरा खत्म हो गया, 4 बाइट्स डीएलोकेट हो गए, दिस इज गॉन। उसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, फ्रॉम वेयर h वाज कॉल्ड, दैट इज दिस पॉइंट, पहुंचा, उसके बाद आगे चला, प्रिंट एफ कर दिया डेनिस रिची, आगे चला, ये मेन भी खत्म हो, जैसे ही मेन खत्म हो गया, इस ये डीएलोकेशन इस सब की होगी, जो x equal to 34 everything, and control goes back to operating system, program is out of hand. Is it clear? Are you getting my point? सबको अब clear है, ठीक है, so this is how it works, ठीक है ना। चलो I will just slightly change it and I might ask you क्या बोलूंगा मैं, अच्छा, let's do something like this. अच्छा, let me see अब आपको ये समझ कितना आया, ठीक है ना। लेट मी, अच्छा लेट मी नो, जरा बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, बोलो बोलो क्विक, विदाउट वेस्ट, मैंने इसको
What will be the output of this program? Can you tell me? Huh? What will be the output of this program? You people are with me or not? इसका आउटपुट क्या होगा? What will be the output of this C code that's on your screen? बोलो. अरे कुछ तो बोलो, स्टार्ट तो करो. अरे what will be the output of this C code? You people are with me or not? सर एक 887 आएगा. के बाद चलो लेट्स मेक इट \n. अब बताओ थोड़ा. अब बताओ पहली लाइन पे 887, दूसरी लाइन पे हाँ बोलो. दूसरी लाइन पे 2 आएगा, तीसरी लाइन पे डेनिस रिची आएगा. दिस इज क्वाइट सिंपल. आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखो एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन int x equal to 34. h फंक्शन हुआ कॉल. रिमेंबर h कॉल हुआ ना, ये जो मेन फंक्शन इट्स नॉट डन. ये स्टैक, ये रैम में वैसे ही है, ये x भी वैसे ही है विद 34 वैल्यू. नाउ इट गोज आउट ऑफ स्कोप. कंट्रोल कहां जाएगा? h पे. ठीक है. h के अंदर एक नया इंटीजर वेरिएबल x है 887. प्रिंट f कर दिया x, 887 आ गया स्क्रीन पे. लेकिन उसके बाद जो उसकी दूसरी स्टेटमेंट है ना, दैट कंटेन्स द फंक्शन कॉल टू t. ठीक है ना? व्हाट इज दिस? फंक्शन कॉल टू t फंक्शन. ठीक है ना? तो ये void h भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे इसकी लास्ट स्टेटमेंट ये थी, देयर इज अ कॉल टू t. कंट्रोल कहां गया? t पे. देखो अब मेन ने बुलाया था h को, h ने किसको बुलाया? t को. h इज स्टिल देयर. h इज नॉट डन. रिमेंबर, इसलिए इसका जो ये अपना है ना int x equal to 887, ये भी रैम में वैसे ही है, टेकिंग इट्स 4 बाइट्स एंड दिस वैल्यू 887. अब ये वैसे ही है रैम में. बट नाउ द मोमेंट दिस फंक्शन गेट्स कॉल्ड, t कंट्रोल comes here, this goes out of scope. x, अब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. x में क्या है? See, I have specified the return type as int. That means after performing its job, it will return an integer value to the point from where it was called. इसलिए मैंने लिखा return statement. Return करो, let's suppose 5 divided by 2, and we know integer division truncates. इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 ही आएगा. 2.5, 0.5 खत्म हो जाएगा. तो ये 2 कहां पे रिटर्न करेगा? जहां से इस t को बुलाया गया, that is this point. यहाँ पे 2 आएगा. तो प्रिंट क्या कर देगा? ये प्रिंट यहाँ पे कर देगा 2. जैसे ही ये प्रिंट कर देगा 2, देखो अब ये t खत्म हो गया, ये 2 खत्म हो गया प्रिंट करके, ये फंक्शन h भी खत्म हो गया. जैसे ही ये खत्म हो गया, मेमोरी डीएलोकेशन विल टेक प्लेस. ये x से अपने 4 बाइट्स छीन लिए जाएंगे. खत्म. कंट्रोल कहां जाएगा? जहां से h को बुलाया गया, दैट इज दिस पॉइंट यहाँ पे. उसके बाद आगे चल के डेनिस रिची का. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? इट विल बी 887 ऑन वन लाइन, 2 ऑन सेकंड लाइन एंड डेनिस रिची ऑन थर्ड. अरे सबको क्लियर है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? समझ आया. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको कि नहीं? ठीक है. Yes, sir. जी सर. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द, इसको हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो को समझना, कि कंट्रोल कहां से कहां जा रहा है. ठीक है ना? अगर आपने ये नहीं समझा, देन यू कैन नेवर एवर बी अ गुड प्रोग्रामर. It should be crystal clear in your mind what the memory map is, how the control is flowing from one part of the program to the other. If you are not able to apprehend this clearly, then this is all useless. फिर आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि आउटपुट क्या होगा प्रोग्राम. You will never ever be able to kind of, decipher or decode it. ठीक है? So I hope functions is clear. देखो function में मैंने यहाँ पे int लिखा. Let's suppose I write float. अब आप मुझे बोलो, अब आउटपुट क्या आएगा? जरा बोलो जल्दी, क्विक, ध्यान से, लेकिन बोलो अब क्विकली. यहां पे मैं करता हूं %f. अब बताओ तब भी आउटपुट क्या आएगा? बताओ क्विक. अरे बोलो जल्दी. व्हाई यू आर सो स्लो? 2.5.
कहां आएगा 2.5? इट विल गिव 887 2.60 एंड डेनिस रिची, बिकॉज इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट्स। ये जो है ना 5/2, इसकी वैल्यू तब भी 2 ही आएगी ना, फिर फ्लोट इसको प्रिंट कर देगा 2.60, स्टिल यू विल गेट इनएक्यूरेट आंसर। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है सर ये रिपीट कीजिए प्लीज जो आपने भी बोला। हाँ, लेट मी फर्स्ट रन इट। क्या हो गया? मिसमैच। हाँ, अब इसमें मिसमैच दिखा रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ये करता, अब एक परफेक्ट आंसर देता जो स्टूडेंट कह रहा था, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? लेट्स ट्राई टू रीड द सर एरर। आपने वहाँ प्रिंट एफ पे वहाँ परसेंट डी लिखा है, वहाँ पर भी तो एफ लिखना है ना। प्रिंट तो एफ प्रिंट पे तो एफ परसेंट एफ डी तो लिख दिया है, प्रिंट एफ पे तो लिख। उसके लेट्स रीड द ऊपर। एरर। इट इज सेइंग implicit declaration of function t, function call to t, error, conflicting types for t, conflicting types for t। इसको क्या होगा? but argument 2 has type int। अच्छा, so now I guess this should run, ठीक है ना। क्या एरर दे रहा है? लेट्स सी। warning, implicit declaration function t, function call to t। देखो, format %f expects argument of type double but argument 2 has type int। अच्छा, ये expect कर रहा है double but argument 2 has type int। argument 2 has type int। हमने तो दे दिया है इसको %f, ठीक है ना, so it should work मेरे हिसाब से। इसमें क्या है? let me check। format %f expects argument of type double। सर एक्स क्या ले रहे हैं? x नहीं, x तो वो छोड़ो ना, वो ऊपर इंट वाला है। ले रहे हैं ना। हाँ, अरे नहीं, वो तो ये x है, इसके साथ हमें कुछ नहीं है। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाले लाइन की। इस हियर वी आर कॉलिंग फंक्शन t, ठीक है ना। printf परसेंट t कॉल हो रहा है तो इसकी रिटर्न टाइम मैंने फ्लोट रख दी, सो इट शुड रिटर्न फ्लोट वैल्यू। तो ये तो प्रिंट करना चाहिए फ्लोट। इसमें क्या एरर आ रहा है? एक सेकंड, लेट मी चेक इट। फॉर्मेट %f एक्सपेक्ट्स आर्गुमेंट ऑफ टाइप डबल, ठीक है, बट आर्गुमेंट 2 हैज टाइप इंट। हमने इंट तो दिया ही नहीं है, ये क्यों पूछ रहे हैं? सर नीचे हमने दिया ना x int x is equal to 34, वो तो नहीं हो रहा है एरर। अरे नहीं, ये आप देखो ना ऐसे। 17th। नहीं 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 नहीं, ये नहीं वो चीज है। लेट मी, शायद इसको एक्सप्रेशन ऐसे तो नहीं डालना, बट इट शुड वर्क परफेक्टली। इसमें तो कोई एरर ही नहीं आना चाहिए। ये क्यों एरर दिखा रहा है? एक सेकंड मैं दूसरा कंपाइलर, कभी ये कंपाइलर इशू कर देता है, ये फिर पागल कर देता है। ठहरो एक सेकंड, आई विल जस्ट पुट इट इन दिस dev C++, जस्ट अ मोमेंट। ऐसे आप कभी इशू हो जाता है, कभी इस कंपाइलर में इशू, कभी उसका। ये दीज आर स्मॉल थिंग्स, जिसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको एरर से घबराना नहीं है, यू विल लर्न विद एरर्स, ठीक है ना। Then why it's not taking a call to this function t? इसमें क्या है? फंक्शन कॉल तो अच्छा ठीक है, फाइन 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 फाइन, ओके, आई गॉट द पॉइंट। चलो, इसमें एक और पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। दैट्स फाइन, ठीक। ओके, आई विल कम टू दिस लेटर ऑन। इसमें ये मसला है, देखो इसमें मसला क्या है। इसमें आपका ये मसला हो जाता है, दिस कंट्रोल x, ये ध्यान से देखना। कंट्रोल, लेट मी रन इट अगेन, लेट्स सी व्हाट इट डज नाउ। अब देखो, आउटपुट सबको दिख रहा है। यस सर। देखो ये भी एक पॉइंट है कि मैंने खाली, पता मैंने क्या किया। अगर आप देखोगे, मैंने खाली इतना ही किया।
मैंने इस टी को ऊपर लिखा, इस वाइड को नीचे लिखा और सारा प्रोग्राम ठीक चला। कोई मुझे बोल सकता है क्यों? इसका क्या रीजन है? देखो आपको आ रहा था एरर, अभी ये बोल रहा था कि टी मुझे पता ही नहीं है। द एरर इट वाज गिविंग इज कि मुझे टी समझ नहीं आ रहा टी क्या है। लेकिन जैसे मैंने फ्लोट टी को ऊपर लिखा, एच को नीचे लिखा, अब ये क्यों ठीक चला? कैन एनीवन टेल मी इसका क्या रीजन है? क्विकली आई विल टेल यू व्हाट द रीजन वाज फॉर दिस एरर। ठीक है, जब हम उल्टा लिख रहे थे ना, पहले वाइड एच मैंने लिखा था, उसके बाद फ्लोट टी, तो वाइड जब कंपाइल होगा ना प्रोग्राम, ये देख रहा था टी को, क्या देख रहा था, लेकिन इसने टी को पहले देखा ही नहीं था क्योंकि वाइड हमने फ्लोट टी हमने नीचे लिखा था ना, सो इट वाज गिविंग एन एरर, आई डोंट नो व्हाट टी इज। ठीक है, और गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन। ठीक है ना, यहां से कंट्रोल जाएगा यहाँ, फिर जब इसको टी मिला, इसने एरर दिया कि आई हैव नॉट सीन टी। लेकिन जब अब मैंने ऑर्डर चेंज किया जो आपके सामने है, नाउ इट वर्क्स परफेक्टली। क्यों? क्योंकि जब कंपाइलेशन होगी, आई एम रिपीटिंग, नाउ व्हेन द कंपाइलेशन ऑफ दिस सी कोड विल टेक प्लेस, पहले मैंने टी लिखा है, उसके बाद एच, जब ये एच को कंपाइल करेगा, इसमें इसका आगे कॉल टू विच फंक्शन टी, लेकिन इसको टी पहले ही मिला है ऊपर। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट विल वर्क फाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एरर जो आ रहा था, ये क्यों आया? ये एरर इसीलिए आया है क्योंकि जब प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है, ठीक है ना, कंपाइलेशन मींस कन्वर्टिंग द सी कोड इनटू जीरोस एंड वंस। ठीक है, अगर मैं ये void फंक्शन पहले लिखता, इसके अंदर देयर इज अ कॉल टू फंक्शन टी, लेकिन इसने टी देखा ही नहीं था, ये एरर देगा, आई डोंट नो व्हाट टी इज। अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने क्या लिख दिया, मैंने फ्लोर इस टी को क्या लिख दिया, ऊपर, इस टी को क्या मैंने लिख दिया, ऊपर। तो इस वजह से जब ये कंपाइल होगा, एच में जब ये टी फंक्शन कॉल आएगी, इट विल वर्क फाइन। ठीक है ना, क्योंकि कंपाइलर ने अब इसको ऑलरेडी देखा है। अब लेकिन मैं उल्टा वही करूंगा जो हमने पहले किया था। अब पता चलेगा, और देगा ना एरर? यू पीपल आर विद मी और नॉट? और देगा ना एरर? एरर देगा ना और? यस सर। लेकिन एरर क्यों आएगा? बिकॉज व्हेन द कंपाइलर कंपाइल्स दिस प्रोग्राम, इट विल स्टार्ट फ्रॉम एच, इट विल रीच दिस पॉइंट एंड देयर इज दिस फंक्शन कॉल टू टी, बट इट हैज नॉट सीन टी, ये एरर दे देगा। अब सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन या तो वो वाला है जो मैंने अभी किया था, फ्लोट टी को ऊपर, बट दैट्स नॉट अ गुड वे। दूसरा सोल्यूशन है, यू हैव टू टेल द कंपाइलर इन एडवांस, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, you have to tell the compiler in advance that you will encounter a function h and you will encounter a function t in this program, ताकि ये यहाँ पे जाके एरर ना दे। उसको हम कहते हैं, जो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज फंक्शन प्रोटोटाइप। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेल द कंपाइलर लाइक दिस, दैट इन दिस प्रोग्राम, एक तो आपको h फंक्शन मिलेगा जो कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, प्लीज रिमेंबर, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है ना, और उसको क्या मैं बोलूंगा, कंपाइलर को ऊपर ही लिख दूंगा। और आपको एक फंक्शन कौन सा मिलेगा, टी, उसका भी रिटर्न टाइप वाइड है और वो ले भी कुछ नहीं रहा है, दैट इज, दिस इज आल्सो व्हाट, इज इट क्लियर? नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। क्यों? क्योंकि जब कंपाइलर कंपाइल करेगा, वो बोलेगा अच्छा मुझे आगे एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम एच है, दैट एक्सपेक्ट्स नथिंग, दैट इज वाइड, और उसका रिटर्न टाइप भी वाइड है, और मुझे एक और फंक्शन मिलेगा बाय द नेम टी, which whose return type is wide and which expects wide. अब अगर मैं रन करूंगा, it will run perfectly. Is it clear to everyone? जो मैंने कहा उसमें क्या होगा, function call to h, invalid use of wide expression। क्यों हमने wide कहाँ पे गलत किया? अच्छा wide तो कर रहा है ना, लेकिन आपने बोला ही नहीं it। अब यहाँ पे तो इसका देखो, ये एरर क्यों, जरा बोलो एरर क्यों आया, क्विक, एरर क्यों यहाँ पे आया क्विकली? सर क्योंकि पहले वाइड एच है ना, तो पहले वाइड एज तो है, उसको लगा, कंपाइलर को हमने बोला एक फंक्शन एच है, रिटर्न टाइप है वाइड उसका, और वो ले भी कुछ नहीं रहा है, बीच में वाइड, वो तो इसको मिल गया। लेकिन दूसरा मैंने क्या इसको बोला है, एक फंक्शन टी है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, लेकिन यहाँ पे टी का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। देयर इज अ मिसमैच, इट विल थ्रो एन एरर। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना था? इज इट क्लियर? यस सर। अरे सबको क्लियर है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्लियर है। So this is, I guess we are having less than 3 minutes, ठीक है ना? So this is how it works. लेकिन please remember, it's very important that you understand how the control flows. ठीक है ना? खुद से लिखो 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी डी एलोकेशन तभी होगी जब एनक्लोजिंग फंक्शन पूरा खत्म होगा। दैट मींस यू रीच टिल द एंड ऑफ द फंक्शन, दैट मींस दैट कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है ना?
I am repeating with this program for those. Execution will start from main. Int x equal to 34 साइड में डब्बा बनाओ, x लिखो नीचे, स्टार्टिंग एड्रेस जो 3040 उसमें अंदर डाल दो 34. उसके बाद फंक्शन h is being called, कंट्रोल will straight away come here to this point. लेकिन मेन ऐसे ही है क्योंकि मेन खत्म नहीं हुआ, तो वो x भी ऐसे ही है विद वैल्यू 34 टेकिंग इट्स 4 पाइप्स, वो खत्म नहीं हुआ, डीएलोकेशन नहीं हुई. ठीक है. उसके बाद h के अंदर नया x है 887, प्रिंट कर देगा 887. देखो फिर void h में यहाँ पे फंक्शन कॉल है t, तो ये h भी खत्म नहीं हुआ, ये भी ऐसे ही रैम है, और ये x 887 भी वैसे. नाउ इट गोज आउट ऑफ स्कोप द मोमेंट यू कम हियर t. इसने रिटर्न कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी लिख सकते हैं. ठीक है ना. हाँ एक्सप्रेशन होगा फिर डालना चाहिए अगर ज्यादा बड़ा होगा. राइट लाइक दिस 2.0 तक, तो रिटर्न कर देगा 5.05, दैट इज 2.5. ये t कहाँ रिटर्न करेगा, ये 2.5 टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड, दैट इज हियर. यहाँ पे 2.5 आएगा और वो प्रिंट हो रहा है. तो जब इसने रिटर्न किया, खत्म हो गया ना फंक्शन t अपना, तो डीएलोकेशन जो भी है इसकी सारी खत्म हो गई एग्जिस्टेंस रैम से. तो इसने यहाँ पे जाके 2.5 किया, ये वाला h भी खत्म हो गया, इसकी भी सब कुछ खत्म. दिस x 887 वैल्यू गॉन नोवेयर, डीएलोकेशन. कंट्रोल आएगा इस जगह पे, यहाँ पे आगे जाके डेनिस रिच प्रिंट कर देगा, मेन भी खत्म, कंट्रोल गोज बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू गेट द आउटपुट, दैट्स इट, नथिंग इज इन रैम. इज इट क्लियर? सर अगर हम एक चीज करेंगे, मैन में जो h है ये लिखेंगे ही नहीं, तो मेरे ख्याल से प्रिंट आएगा सिर्फ डेनिस रिच ही. अगर आप मेन में ये लिखोगे नहीं, एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल, फिर तो कहीं कुछ नहीं जाएगा, फिर खाली डेनिस रिच. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, फिर तो सीधी सी बात है, खाली डेनिस रिच आएगा. सबको क्लियर है? किसी और को कोई डाउट है? 1 ही मिनट बचा है, जल्दी पूछो. आई विल स्टॉप टुडे विद दिस. कल हम पॉइंटर्स उठाएंगे, लेस देन 1 मिनट वी हैव, क्विक, अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है. टुमारो आई विल टेक अप पॉइंटर्स, उसमें हम विल टॉक अबाउट कॉल बाय रेफरेंस. ठीक. सो दिस इंपॉर्टेंट लोकल स्कोप, आउट ऑफ स्कोप. अच्छा क्विकली अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना, लेट्स सपोज int x इक्वल टू 97, देखो सबके बाहर, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल मींस हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई फंक्शन, बीट h, बीट फ्लोट t और मेन. दिस इज ग्लोबल, सबके बाहर मैंने इसको ग्लोबल कहते हैं. इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है अगर आप कुछ नहीं दोगे. ठीक है ना. लेकिन आपको पता है हर किसी की लोकल कॉपी भी है, x इक्वल टू 34, x इक्वल, लेकिन ये सब अपने लोकल कॉपीज एक्सेस करेंगे. ठीक है ना, इन दिस केस बिकॉज़ दे आर हैविंग देयर ओन x. ठीक है. लेट्स सपोज यहाँ पे int x इक्वल टू 887 था ही नहीं, आप कर रहे हो printf%dx, तो ये प्रिंट क्या करेगा, इट विल प्रिंट 97, द ग्लोबल कॉपी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल.